Hello, hello, hello to you all lovely people. In this lecture, we will be discussing about inelastic collision and specifically inelastic collision in one dimension. So let's go ahead with the discussion of inelastic collision in one dimension. As already I told you, जैसा कि already हम बता भी चुके हैं आपको, we have discussed कि in case of inelastic collision, the total kinetic energy is not conserved. Yeah? You must be remembering that thing. आपको याद होगा ना? The total kinetic energy is not conserved. Some of the kinetic energy is lost when an inelastic collision happens. Or other way you can say that some of the kinetic energy is converted into some other form of energy like heat, sound, okay, which can't be, reverted back. Okay? In conversion into sound and heat energy, mean the energy is lost. Okay? So let's go ahead with inelastic collision in one dimension. It's okay. The kinetic energy is not conserved. Okay? When an inelastic collision happens, it is lost. It is lost, and it is lost in the form of heat energy or sound energy, etc. Fine. Now, the thing which is conserved during an inelastic collision, what is that? That is linear momentum. During an inelastic collision, linear momentum is always conserved. Now, you may ask, why it is conserved? Now just think, in accordance to law of conservation of linear momentum, when no external force is applied on the system, or when the system is colliding because of the internal forces, okay, so as there is no external force, the external force when is not acting on a system, the linear momentum of that system is conserved. यही स्टेटमेंट है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. ठीक. So let's go ahead to study inelastic collision in one dimension, okay, in the view of these key points. Now, let we have a mass m1. That's okay. Mass m1 moving with velocity u1. Along same straight line, another mass m2 moving with velocity u2. Both collide with each other, okay, and the collision is of inelastic type. Collision is inelastic, and after collision, bodies are separating. m1 moving with velocity v1 and m2 moving with velocity v2, and both the objects are moving along the same straight line as they were happening before. जो straight line उनका initial था, उसी same straight line के along जो दोनों masses हैं वो चले जा रहे हैं. तो collision one dimension में हो गया. Now, this collision is inelastic. Fine. So, applying conservation of linear momentum to the situation. आराम से इसको वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस सिचुएशन के लिए लिखो, ठीक है, फिर मैं आपको चेक करवाता हूं. ओके. नाउ व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द सिचुएशन इज सेइंग के लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन will remain same. Okay,
तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहे हैं, मतलब दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम लाइन के अलोंग होगा, इन द सेम डायरेक्शन होगा, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो गए, टोटल लीनियर मोमेंटम बना देंगे। एंड द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, नाउ टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही चले जा रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट मास आफ्टर कोलिजन m1 v1, सेकेंड मास m2 v2, सेम स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों का सम। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों इक्वल। ठीक, इट्स ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन वी कांट अप्लाई ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब यहां पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। जस्ट वन थिंग देखो, यहां पे इस इक्वेशन के अगर यूटिलाइजेशन की बात करें, मासेस आर नोन, और अगर आपको इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 दोनों पता है, ओके, तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द सिचुएशन, ओके, स्पेशल केस फॉर द कोलिजन। The situation is, let we have mass m1, okay, mass m1 moving with velocity u1. This mass collides with another mass m2 at rest, mean u2 is equal to 0. Okay, both collide inelastically, okay, दोनों ने inelastically collide किया, and after collision दोनों are moving, both are moving together with common velocity, with same velocity. m1 and m2 are moving together with same velocity v. The collision is inelastic. It's okay. Now यहां हम velocity after collision, that is this common velocity, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड बिकॉज द कोलिजन इज इनइलास्टिक, तो यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द सिचुएशन ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, दैट आल्सो वी विल बी कैलकुलेटिंग। इट्स ओके, तो लेट्स फर्स्ट गो अहेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ velocity v with which these both masses are moving after collision, after colliding inelastically. Okay, let's go ahead. Now applying conservation of linear momentum, देखो linear momentum before collision m1 u1 और इसके लिए 0, ठीक, after collision it is m1 v plus m2 v, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चले जा रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, आई मीन लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो फ्रॉम हियर यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी। इट्स ओके, सी यहां से हमने क्या किया, m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 u1, तो कॉमन वेलोसिटी is equal to m1 over m1 plus m2 into u1. This is the common velocity. ये common velocity है जिसके साथ हमारी दोनों bodies मूव कर रही हैं आफ्टर कोलिजन, दोनों masses मूव कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन। इट्स ओके, ये कॉमन वेलोसिटी आ गया, फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। अब हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस इनइलास्टिक सिचुएशन फाइंड करते हैं। ओके, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना बना आपका,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ m1 u1 square plus second mass is having zero kinetic energy. तो total kinetic energy half m1 u1 square. Kinetic energy initial. Kinetic energy after collision को मैं kinetic energy final लिखता हूं बेटा, half mass m1 moving with v, m1 v square plus second mass also moving with the same velocity v, m2 v square, and we can write it like this, half m1 plus m2 into v square. ठीक. Now loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy डेल्टा E से लिख देते हैं. It's okay. Kinetic energy initial minus kinetic energy final. Kinetic energy final. दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, and applying the values we are getting half m1 u1 square. It's okay. Minus half m1 plus m2 into v square. v का वैल्यू डाल दें. ठीक, v का वैल्यू प्लेस कर देते हैं. v का वैल्यू प्लेस करके ये हाफ तो कॉमन आ गया, हाफ तो कॉमन रखो, हाफ. ठीक, हाफ m1 u1 स्क्वायर. यहां से भी हाफ बाहर, नेगेटिव साइन. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ बना यहां पे m1 प्लस m2 v. योर v इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1. ये वैल्यू प्लेस कर रहा हूं बेटा. सी, v इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर. तो इस पार्ट का भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड u1 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, डन है यहां तक. फाइन. नाउ सी, m1 m2 सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग हाफ, ओके, m1 u1 स्क्वायर माइनस ये m1 गया. ठीक है, m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर. ठीक, ये अपना फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी विल बी गेटिंग, ये देखो, m1 प्लस m2 एलसीएम यहां पे m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, और दिस इज 1/2. फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, वी आर गेटिंग this thing, we are getting further simplifying the above equation. Loss of kinetic energy is equal to, अब यहां पे देखो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर पॉजिटिव, m1 u1 स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गया. यहां जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज m1 m2 u1 स्क्वायर ओवर 2m1 प्लस m2. तो वी आर गेटिंग दिस एज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक, अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना बिग है. ओके, चलो लेट्स चेक. एक थोड़ा चेक पॉइंट लगाते हैं. फर्स्ट थिंक ऑफ द वेलोसिटी. ये वाला वेलोसिटी चेक करो. ठीक है, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2. m1 over m1 plus m2 will be a factor, will be creating a value which will be much less in comparison to 1. है ना, m1 अकेला है और m1 m2 दोनों का सम है, तो this m1 m2 is greater than m1.
तो ये एक लेस देन 1 फैक्टर लेके आएगा. एज दिस इज लेस देन 1, तो v जो होगा वो लेस देन u1 होगा कि नहीं? v लेस देन u1. इट्स ओके. तो जब हम काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, m1 m2 दिस, ठीक, u1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये स्मॉल है तो लॉस इन एनर्जी भी तो आपका स्मॉल होगा या नहीं? ठीक. तो मेन थिंग इज, देखो डेल्टा ई, पहली बात, डेल्टा ई इज पॉजिटिव, इट इज हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस एनर्जी इज लॉस्ट. और दूसरी बात, एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि v का वैल्यू जितना ज्यादा मासेस में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये, ठीक. तो ऑन द मासेस ऑफ ऑन द यू नो कि m1, हाउ मच m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लॉसेस हाउ मच, ठीक. तो मेन एम वाज टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट एंड व्हाट्स द नेचर. इज इट रियली लॉस्ट? यस, इट इज रियली लॉस्ट बिकॉज change in energy is positive. Final minus initial, initial minus final is positive, so it means initial was greater than final, and this is your loss of energy. It's okay. So this is all about your inelastic collision. Go through this particular content, okay, and if you find any kind of confusion, let me know about. Thank you. Have a nice day.